हेलो दोस्तों, वे ट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 7 तारीख की मिसलेनियस केसेज की लिस्ट आ चुकी है और 7 तारीख को भी 3 जजों की बेंच है। इसका मतलब ये हो गया कि 7 तारीख को आपके केस की सुनवाई नहीं होगी। अब जो हमारी 6 तारीख को जो सुनवाई होगी उसमें जो स्पेशल बेंच आदेश देगी उसके अनुसार सुनवाई होगी। अब इसका मतलब तो यही है कि स्पेशल बेंच कभी बनाई जा सकती है। उस दिन तो अब जैसा दिखाई दे रहा है वहाँ आधा घंटा मिलेगा। अब आधे घंटे में सुनवाई हो पाती है, नहीं हो पाती है, स्पेशल बेंच क्या आदेश देती है अगली हियरिंग का, ये उस पर डिपेंडेंट करेगा और जैसा भी होगा वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ 22/4/2026 को जो EIVA की भगदड़ मची थी और फिर ये 10 जून को कहीं करने जा रहे हैं, हो सकता है उस समय भी ऐसा हो जाए। उस समय लोगों के बड़े बड़े कमेंट आए थे और हमारे पास ये सारे जमा हो रहे थे, लेकिन क्योंकि इससे ज़्यादा दूसरे मैटर इंपॉर्टेंट थे उनको हम डाल रहे थे। अब मैं सोचा ये मेरे पास पड़े, इनको भी डाल देता हूँ, लोगों तक पहुँचे तो सही, कम से कम पता तो चले कि लोग क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते हैं। और धीरे धीरे हम डेली हम यही बताएंगे कि बहुत से लोगों को पता नहीं है, नए वालों को, कि इन लोगों ने किया क्या क्या है। दूध का धुला कोई नहीं है। हम कईयों को कहते हैं कि उसने अच्छा काम किया, उसने अच्छा काम किया, लेकिन कुछ हमारे पास ऐसी भी चीज़ें आ रही हैं कि जिसको हम अच्छा कह रहे हैं उसने अच्छा किया, शायद कहते उसी ने जड़ बोई थी। अब मैं नाम तो नहीं लेना चाहता किसी का, अच्छा नहीं है, जो आदमी दुनिया छोड़ के चला गया है अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर भी अब मैं कुछ कमेंट्स बताता हूँ। जब ये हुआ सब एनफ इज एनफ, वैकेट लीडरशिप इन ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन। ये सीधा का सीधा कहना किसका है? ये वेंकटचलम को कहा जा रहा है। अब अकेला वेंकटचलम नहीं है, मैं तो कहीं देख रहा था कि कहीं जो EIVA है इसमें सर्विंग जो अपने ऑफिस बियर वो तो बहुत कम है, सारे के सारे मतलब रिटायर्ड हैं पूरे के पूरे। लीडर्स ऑफ ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन, व्हाट हैपेंड ऑन 22nd April 2026 in Bangalore at the 30th conference is not just an embarrassment, it is a complete disgrace. Elections were not conducted. The venue turned into chaos. Delegates walked out in frustration. This is your leadership. This is your legacy. Let us stop pretending. The real problem is clear. Retired leaders are still clinging to power like it is their personal property. You have already retired from service, but you refuse to retire from control. Why? Is leadership a lifetime post? Is AIVA your private property? Are you afraid of facing elections and accountability? Ground reality is brutal. Government and bank management are not even recognizing or entertaining retired leaders in negotiation anymore. Yet, you continue to occupy positions and weaken the organization from within. ये किसी व्यक्ति का वो था। आगे दूसरा कहता है, now we demand not request immediate resignation of all retired leaders from leadership roles, conduct of free, fair and transparent elections, complete handover of leadership to the younger generation. Don't test the patience of members any further. If you still continue to hold on to power, you are not protecting the organization, you are destroying it. Step down with dignity or be remembered as those who ruined All India Bank Employee Association. Because of you, the organization has lost credibility. The younger generation is being deliberately sidelined. Decision making has become outdated and disconnected. Internal democracy has been crushed. Let us be very clear. This is not sacrifice, this is not experience, this is nothing but selfish occupation of power. You speak about workers' rights, democracy, struggle, but inside the organization, you are denying the same democracy.
If you had even a fraction of moral responsibility, you would have stepped down long ago. You would have encouraged new leadership. You would have ensured elections are conducted properly. Instead, what we see chaos, manipulation, fear of losing control. The Bangalore incident has exposed all these things. दोस्तों, मुझे सिर्फ पढ़ना था, ये बड़े दिन से पढ़ा था मेरे पास। अब क्योंकि अब वेंकट मेरे पास तो अब वेंकटाचलम जी के ही दिन आने वाले हैं, थोड़ा सुनवाई हो जाए, हम उसमें लगे हुए हैं और ज़्यादा टाइम मिलता भी नहीं है, काफ़ी टाइम लग जाता है इसमें। तो ये मैं चाहता था कि आप तक पहुंचाऊं 22 तारीख की जो चीज़ें हैं, धीरे धीरे पहुंचाऊंगा। बहुत कुछ रखा है मेरे पास और आप आगे आप खुद ही समझदार हो। जिस भी व्यक्ति ने ये लिखा है मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और उसका सिर्फ यही कहना है कि जितने भी ये पुराने ओल्ड एज वाले लोग यूनियन पर काबू किए हुए हैं, यहाँ से स्टेप डाउन करें और नई जनरेशन को हैंड ओवर करें। थैंक यू, धन्यवाद।